بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال عبان النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلة، رواه الترمذي. وعن ملهب أن رسول الله وعن الملهب أن رسول الله وعن الملهب محلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بيتكم العدو فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، رواه الترمذي وأبو داود. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن، رواه أبو داود. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فبيتناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت، رواه أبو داود. وعن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، رواه أبو داود. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم أي صبيانهم، رواه الترمذي وأبو داود. وعن عروة قال حدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه قال أغر على ابن صباحا وحرق، رواه أبو داود. وعن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم فرموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، رواه أبو داود. وعن رباح بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فقال على امرأة قتيل، فقال ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فبعث رجلا فقال قل لخالد رضي الله تعالى عنه لا تقتل امرأة ولا عسيفا، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وزموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين، رواه أبو داود. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتتب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث، فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأسخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاس الناس حيسة وأتى المدينة فاختفينا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم، رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود نحوه وقال لا بل أنتم العكارون، قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين. وسنذكر حديث أمية بن عبد الله كان يستفتح وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ابغوني في ضعفائكم في باب فضائل الفقراء إن شاء الله تعالى. الفصل الثالث. عن ثوبان بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، رواه الترمذي مرسلا. باب حكم الأسراء. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، وفي رواية يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه البخاري. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه، متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبين أن نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه وجعل ينظر وفينا زعفة ورقة من الزهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله
فأساره فاشتد به الجمل فخرجت أشتد حتى أخذت بختام الجبل فأنخته ثم اخترت سيفي فضربت رأس الرجل ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع فقال له صلب واجمع. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء نزلوا على حكمكم قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك وفي رواية بحكم الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن أسال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا سمامة؟ فقال عندي يا محمد خير إن تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال له ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي ما قلت لك إن تنعم على شاكر وإن تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال له ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي ما قلت لك إن تنعم على شاكر وإن تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا سمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوته؟ فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم واختصره البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. भी हो साफ भी हो। इबारत जी इबारत की 3 सिफात आप लोगों ने पढ़ी है ना? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है फाड़ी कि इबारत क्या हो? सहीह हो, सहीह, कोई गलती उसमें ना हो। ठीक है, रफ़ा नस्ब जर की गलती ना। और दूसरी बात यह है कि सरीह हो, सरीह यानी वाज़ेह हो, एक एक लफ्ज़ पढ़ा जा रहा हो, लफ्ज़ समझ आ रहा हो कौन सा लफ्ज़ पढ़। और तीसरी सिफत क्या है? सरीह हो, रवांगी से। ठीक है, तो जैसा पढ़ा थोड़ा सा सुर भी लगाना चाहिए तो मज़ा आए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा ना हो कि बात पढ़े बंदे को नींद आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद मन लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरत बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यंबगि अन युसल्ला अलैहि। अल-फ़स्ल अस-सानी, दूसरी फसल अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तैयार किया बदर वाली रात। अब्बा ताबिया, इसका मतलब क्या बनेगा? अब्बा युअब्बिउ ताबियतन,
मस्तर है कि नहीं भाई, तफील से आता है कि नहीं आता? तफ़अलतुन के वज़न पर भी मस्तर आता है। ख़त्ता युख़त्तिउ तख़्तिअतन, हन्ना युहन्निउ तहनियतन, रब्बा युरब्बी तरबियतन। तरबियत नहीं है, ये तरबियत है। क्या है? तरबियत है, तरबियत। जर्रबा युजर्रिबु तजरिबतन, ये तजरिबा है, तजुर्बा नहीं। ये लफ्ज़ तजरिबा है, तजुर्बा नहीं। इसी तरह तर्जमा है, तर्जुमा नहीं, इसका तर्जमा कर। तर्जमा यो तर्जिमु तर्जमतन है, तर्जमा। दहरजा यो दहरिजु दहरजतन है कि दहरुजतन? दहरजतन। तो तर्जमा है, तर्जुमा नहीं। समझ आ गई कि नहीं आई? तो ये तुम हमें तैयार किया, क्या मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया सुबह जंग होगी, इस तरह हम सब बंदी करेंगे, यहाँ पर सब बंदी करेंगे, कुछ लोग फलां लोग उधर होंगे, फलां उधर होंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम तीरंदाजों को बिठाएंगे और तीरंदाज हम इस तरह फेंकेंगे, जब करीब आएंगे फिर तीरंदाजी करेंगे, दूर से नहीं करेंगे, इस तरह तीर फेंकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये हमने क्या किया? रात हमें ब्रीफिंग दी, हमें जो है ना वो तैयार किया। समझ आ गई कि नहीं? फरमाते हैं मुहल्ला बिन अबी सुफरा रज़ी अल्लाह ताला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब अगर तुम पर दुश्मन शब खून मारे, रात को हमला करे, तो तुम्हारा शिआर होना चाहिए, तुम्हारा शिआर होगा क्या? हामीम ला युनसरून। हामीम हुरूफ मुक़त्तआत में उन काफिरों की मदद नहीं की जाएगी। ये शिआर वैसे अलामत को कहते हैं, निशानी, लेकिन आजकल की ज़ुबान में इसको कहते हैं कोड वर्ड। क्या कहते हैं इसको? कोड वर्ड। फरमाया कि अगर तुम पर हमला करे रात को, तो तुम्हारा शिआर क्या होगा? हामीम ला युनसरून। ये पहले ज़माने में भी था और आजकल भी है। फौजियों में ऐसा होता है, रात को अचानक अगर किसी बंदे पर शक हो कि पता नहीं अपना फौजी है या किसी और का वर्दी पहन कर आया है, तो रात को मुख्तलिफ रातों के मुख्तलिफ कोड वर्ड होते हैं, एक निशानी होती है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मसलन आपस में मशवरा करते हैं फौजी लश्कर वाले कि आज हमारा कोड वर्ड होगा 1150। तो अब उससे पूछे तुम कौन हो? शक हो गया, तो फ़ौरन आगे से कहते हैं 1150। तो मतलब क्या है कि ये अपना बंदा है। अगर उसने गलत बताया तो फ़ौरन उसको पकड़ते हैं कि ये तो वर्दी पहनकर हमारे लिबास में आया है। तो इसी तरह जो है ना वो, या रात को किसी पर हमला किया, मुसलमानों पर हमला किया, मुसलमानों ने किसी पर हमला किया, तो रात को पहचान तो नहीं होती, अंधेरा होता है। तो अब कोई सामने आ गया, अब उसको पता नहीं अपना है या पराया है, तो फौरन वो कहता है 1150। मिसाल में हामीम ला युनसरून, अगर अमित तो मतलब है कि अपना बंदा है, इसको छोड़। तो इसको ये शिआर कहते हैं। आजकल के ज़माने में इसको क्या कहते हैं? कोड वर्ड। समझ आ गई कि नहीं आई? तो समरत बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि मुहाजिरीन का शिआर था अब्दुल्ला और अंसार का शिआर था अब्दुर्रहमान। किसी ग़ज़वे में होगा, समझ आ गई? तो मुहाजिर फ़ौरन अब्दुल्ला मुहाजिरी, अब्दुर्रहमान कहते तो क्या है? अंसारी। तो ये था। सल्लम इब्नुल अक्वा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला से मिलकर जिहाद किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने। हमने कुफ़ार पर शब खून मारा, हम उनको कत्ल कर रहे थे और हमारा शिआर उस रात था अमित अमित, यानी अल्लाहुम अमित, अल्लाह इन कुफ़ार को मौत की घाट उतार दे, इनको क्या कर दे? कत्ल कर दे। तो मतलब है कि रात का वक्त है ना, पता नहीं अपना कौन है, तो आमने सामने आते थे अमित अमित, तो इसका मतलब क्या है? अपना बंदा है। समझ आ गई ना? कैस इब्न उबादा
फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नापसंद करते थे आवाज़ को क़िताल के वक्त। इन्हें जब जंग, यार ज़रा ठंडा पानी ना लाया करो, आजकल मौसम बदल रहा है ना, तो गला ख़राब हो जाता है। तो जिहाद के वक्त, क़िताल के वक्त आवाज़ नहीं निकाली, बस बिल्कुल खामोशी से क्या करना है, जिहाद का शोर नहीं करना, शोर नहीं पाना। एक शैतान शोर पाते हैं और क्या नाम है, एक मन शोर और काम एक शैतान कभी नहीं। तो खामोशी से, हाँ शुरू में कभी कभार नाराए तकबीर भी लगता था, लेकिन शुरू में हमला करते हो, बस उसके बाद तो खामोशी से काम करना चाहिए। समरत इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हो कि फरमाया कि तुम मुशरिकीन के बड़ों को कत्ल कर दो और उनके बच्चों को, शर्क़ उनके बच्चों को जिंदा छोड़ दो। शयूख शेख की जमा, लेकिन यहाँ पर शेख से मुराद बूढ़ा आदमी नहीं, यहाँ पर शयूख कहा उनको बच्चों के मुकाबले में, बच्चों के मुकाबले में जो मर्द है, जवान है, उनको कत्ल कर, शयूख नहीं। शयूख से तो आप कल का हमने पढ़ा है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, समझ आ गई, बच्चों से भी मना फरमाया था। उर्वा कहते हैं कि मुझे उसामा तो इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत की थी, ताकीद हुक्म किया था कि तुम जो है ना सुबह हमला करना है उबना पर, उबना जगह पर, और जला दो। उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी लश्कर था, ठीक है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। उबना शाम में एक जगह का नाम था कि वहाँ पर सुबह सवेरे हमला करना है, वहर्रिक़ और जलाना है। क्या जलाना है? फसलों को जला दो, दरख्त खेतियों को जला, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। समझ आ रही? अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बदर के दिन कि जब वो तुम्हारे करीब आ जाए तो तुम तीरंदाजी करना और मत तुम निकालना तलवारों को न्याम से यहाँ तक कि वो तुम्हें ढांप ले, यानी वो तुम्हें करीब आ जाए। कल भी हदीस गुजर चुकी है कि जब तुम्हें करीब आ जाए ना तो फिर तीर फेंकने हैं, दूर से नहीं, ताकि तीर ज़ाया ना हो जाए। पहले से असलहा कम था बदर में, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ताकीद फरमाई कि इंतहाई एहतियात से असलहा इस्तेमाल करें। रियाह इब्न रबिया कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे एक ग़ज़वे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोगों को जो जमा है, कुछ एक चीज़ पर कुछ लोग जमा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा भेजा कि देख लो किस चीज़ पर जमा हुए हैं लोग। तो शख्स आया, उसने कहा कि एक औरत पर जो जिसको कत्ल किया गया उस पर लोग जमा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो जंग नहीं कर रही थी, ये तो क़िताल नहीं कर रही थी, और मुक़द्दमतुल जैश पर खालिद इब्न वलीद थे। तो उनके पास एक बंदा भेजा और फरमाया कि खालिद से कह दो कि औरत को कत्ल ना कर और मज़दूर को भी कत्ल ना मत करना। कल भी हमने हदीस पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कत्ल करने से मना फरमाया। किन औरतों को कत्ल कर सकते हैं उसके बारे में हमने कल अर्ज़ किया। आसिफ अजीर यानी खादिम होता है जो सिर्फ खिदमत करता है, बस जंग में हिस्सा नहीं लेता। चूँकि वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा तो उनको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है। जंग कत्ल तो उसको करना है जो कुछ किसी तरह से भी हिस्सा ले रहा हो, किसी न किसी तरह से, लड़ने के हवाले से या किसी तरह भी उसकी मुआवनत जो है वो पाई जा रही है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह का नाम लेकर चलो और अल्लाह की मदद के साथ और उसके रसूल की मिल्लत पर चलो, और मत करना किसी शेख फ़ानी, यानी बड़ी उम्र के शख्स को, और ना छोटे बच्चे को, और ना औरत को, और ना तुम क्या करो, ख़यानत करो, और तुम मिलाओ अपने गनीमतों को, और आपस में इस्लाह करते रहना और भलाई करना,
एहसान करना, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, भलाई करने वालों को पसंद करते हैं। फरमाया तुम चलो अल्लाह के नाम, उसके रसूल के मज़हब पर। शेख फ़ानी जो है वो बड़ी उम्र बाबा, उसको कत्ल मत करना, छोटे बच्चे को, औरत को, माली गनीमत ख़यानत मत करना, गनाइम को इकट्ठा करना। वह अस्लिहू इसके दो मतलब हो सकते हैं। वह अस्लिहू एक मतलब इसका यह कि आपस में जो है ना वो सुलह सफाई से रहना, आपस में कोई इख्तिलाफात तनाज़ात मत करना, आपस में लड़ना झगड़ना मत। और दूसरा मतलब इसे कहिए, अगर तुम मुनासिब समझो तो वह अस्लिहू, कुफ़ार के साथ सुलह भी कर सकते हो, सुलह कर लेना। अच्छा जी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब बदर का दिन हुआ तो उतबा इब्न रबिया और उसका बेटा वलीद इब्न उतबा, उसका भाई शैबा इब्न रबिया, ठीक है, इन्होंने जो है ना वो आवाज़ दी कि कौन जो है ना मुकाबला करेगा। तो अंसार में से 3 नौजवान ने उनको जवाब दिया, उसको जवाब दिया उतबा को। तो उतबा ने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि हम अंसार हैं। तो वो कहने लगा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हम तो चाहते हैं अपने चचाजाद भाइयों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े हो जाओ ए हमजा, खड़े हो जाओ ए अली, खड़े हो जाओ ए उबैदा इब्न हारिस। तो हमजा रज़ी अल्लाह ताला मुतवज्जे हो गया उतबा की तरफ, और मैं यानी अली कहते हैं मैं मुतवज्जे हो गया शैबा की तरफ, और अबू उबैदा इब्न हारिस और वलीद के दरमियान क्या हो गई, 2 ज़रबें लगी एक दूसरे को। तो उन्होंने एक दूसरे का खून बहाकर नढाल कर दिया। फिर हमने हमला किया वलीद पर, हमने उसे कत्ल कर दिया और हमने उबैदा को उठाया। अच्छा, बड़ा दिलचस्प वाक़या है, लेकिन तफसील यहाँ पर अब नहीं जिक्र कर सकते, आप पढ़ लेंगे अपने जगह पर, मज़ा आएगा, मज़ा। खुलासा भी विलम्ब है, ठीक है। वैसे जंग बदर पर मैंने ना कुछ 14-15 जुमे पढ़ाए हैं। मैंने जुमे में सीरत शुरू की थी, शुरू से लेकर विलादत से पहले से लेकर आखिर तक, कई साल वो चलते रही। खैर बहरहाल अब इरादा है सीरत का रिकॉर्डिंग का, लेकिन टाइम का बड़ा मसला है, टाइम नहीं है। तो चैनल पे ना रिकॉर्डिंग आ जाए, सीरत के दुरूस आ जाए, जैसे तफसीर के आ रहे हैं ना, शरई मसाइल के और आ रहे हैं, तो इसका दर्स भी आ रहा है मिशकात। तो सीरत का इरादा है तफसील से, तो 1-1 घंटे के हो, कोई 80-90 दुरूस हो, और दुआ करे कि अल्लाह ताला वक़्त में बरकत डाले, वक़्त मिल जाए। खैर जंग बदर का था मौका, तो सफ़ें आमने सामने बांधी गई, उस तरफ मुसलमान, इस तरफ मुशरिकी। उसका सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है, इज़ अंतुम बिल-उद्वति दुनिया व हुम बिल-उद्वतिल क़ुस्वा वर-रक्बु अस्फ़ला मिनकुम। खैर अपनी जगह पर तो ये जो है ना निकला, उतबा इब्न रबिया निकला, उतबा निकला, इसका बेटा वलीद बिन उतबा निकला, इसका भाई शैबा इब्न रबिया, यानी 2 भाई। इसने यानी उतबा ने अपने भाई को लिए और अपने बेटे को लिए निकाल। उतबा सरदार था, ठीक है, और इसका एक नाम था, समझ आ गई कि नहीं है। और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की। इसने कहा ना कि मुश्रिकीन से बात निकल रही है, लंबी हो रही है, मुख्तसर कि इसने कहा यार एक दफ़ा छोड़ दो, मैं बात करता हूँ इससे, भतीजा है मेरा अपना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा ना, बड़े भतीजे कहते थे, भतीजे तो खैर नहीं था लेकिन। तो ये गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत की, इस पर असर हो गया। तो ये वापस जा रहा था, रंग इसका मुतगय्यर था कुरान पाक, जब इसने सुना, ठहरता हुआ जा रहा है,
उधर पहुंच के ना तो उनको वहाँ पे उनको बात करता है, लेक्चर देता है लंबा सा। तो इस पर काफ़ी असर हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने गैरत दिलाई, इसको मैं मना किया। ये उतबा था जब ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे गए ना, आजकल वो जगह मौजूद है, उसको जगह को मुहासरा कहते हैं। वो दीवार वहाँ पे है, बस खाली दीवार है। मेरे एक वीडियो उस पर है, मैंने वहाँ पे जाकर पिछले साल वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड की है उस जगह से, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है। और उस पर भी फेसबुक पेज पर भी मौजूद थी, लेकिन वो तो हैक हो चुका है, लाखों लोगों ने देखा। उस पर वहाँ जाके इर्द गिर्द मैंने वो वीडियो बनाई, और एक ये वाक़या जो है ना, ये भी मैंने वीडियो में 3 मिनट की 3 मिनट की वीडियो है, ये भी मैंने जिक्र किया। वो जगह आप उसको मुहासरा कहते हैं, खाली दीवार है। तो वहाँ पर सामने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है, उनकी कब्र है बिल्कुल सामने, और उधर उनकी लाइब्रेरी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से लाइब्रेरी है, छोटी सी लाइब्रेरी है। उसमें पत्थरों में जो कुरान पाक लिखा गया था वो अब भी मौजूद है। उसमें मैंने वीडियो, लाइब्रेरी के अंदर मेरी वीडियो बनी है, वो मैंने वो पत्थरों, वो जो पत्थर कुरान पाक लिखा तो वीडियो मौजूद है मेरे चैनल। वो किसी को, हम गए थे, बहुत सारे लोग थे, बसों में जाते हैं लोग, तो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, वो अरबी थे ना, उधर जाओ, उधर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ी सी अरबी शरीफ मारी, ठीक है ना, तो मुझे सिर्फ मुझे जाने चाहिए बस, मेरे घर वाले भी मेरे साथ, और किसी को नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की, नहीं। फिर उनसे पूछा, मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कहते कर लो। तो वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, वो मौजूद है। खैर, बात ये कर रहा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए ना, तो आप लोगों ने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में गए कुछ देर के लिए, सुना है ना, ये वाक़या तो सुना है ना, ठीक है ना। वो इसके बाग में गए, उतबा, अंगूर का बाग था। बाग अब भी है, वो मतलब बाग नहीं है, लेकिन दीवार, वो निशाना है, वहाँ पे एक मस्जिद से भी बनी हुई है, समझ आ गई। सफ़र जो इसका वो है, वाक़या है हिजरत का, जो ताइफ का सफ़र है, उस पर मेरी एक वीडियो मौजूद है। उस सफ़र में बस में हम थे ना, तो वो उधर उन्होंने मुझे कहा कि आप बयान करें। तो वो बस में जा रहे थे, लोग भी बैठे हुए थे, सारी बस भरी हुई थी, और लाउड स्पीकर में, तो मैंने वाक़या बयान कर दिया। उसमें आप लोगों ने ये भी शायद सुना हो कि अद्दास इनका एक ग़ुलाम था। जब इन्होंने देखा कि खून आलूदा है तो उनको तरस आया, तो अद्दास एक ग़ुलाम था, उसको इन्होंने एक प्लेट में अंगूर रखे, कहा कि जाओ दे दो। दूर से, खुद नहीं गए, तकब्बुर था, लेकिन बहरहाल रिश्तेदार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखकर तरस तो इसको आया। तो खैर अद्दास जाता है। फिर एक मशहूर वाक़या खैर कि अद्दास से जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, तो वो अद्दास पूछता है, ये आपने क्या पढ़ा, ये लोग तो नहीं पढ़ते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं, आप कहाँ से हैं? अद्दास से, ग़ुलाम। तो क्या, मैं मोसिल से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अच्छा आप मोसिल से हैं, यूनुस बिन मत्ता, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके का नाम था ना, यूनुस के इलाके से हैं। वो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं, कैसे पता चला आपको कि वहाँ यूनुस पैगंबर गुजरे? कहते मुझे वही के ज़रिए से पता है। खैर, एक लंबा वाक़या, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जब निकलते हैं बदर के लिए तीनों, तो अद्दास कहता है कि मत निकलो, मत जाओ, उस बंदे के मुकाबले में अगर जाना तो ना जाओ। हालांकि ये जो वाक़या हो चुका है ताइफ का और बदर के, इसके दरमियान 5 साल का वक्फा है, लेकिन जब उसको इन्होंने बताया ना अद्दास को क्या निकल रहे हैं उस बंदे के मुकाबले में जो हमारे पास आया था बाग में, तो अद्दास ने मना किया, लेकिन नहीं रोका। खैर उतबा निकला, फरमाया मयूबारिज़ुना, कौन हमारा मुकाबला करे? तो वहाँ से अंसार को गुस्सा था ना इन पर पहले से कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला है। तो अंसार निकले, उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा हम अंसार हैं। तो क्या, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, हमारे जो कज़न है ना वो सामने आए, उनके साथ मुकाबला करना है। तो वापस गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यह क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठ हमजा, उठ अली, उठ उबैदा इब्नुल हारिस।
हमज़ा चचा, बाकी दोनों चचाजाद भाई, अली भी चचाजाद भाई, उबैदा इब्न हारिस। हालांकि मुहाजिर तो और भी थे ना, लेकिन अपनों को उठाया। तो ये 3 शेर गए, शेर, ठीक है। तो वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर अब इसका वो नक्शा खींचा है। तो वो हमज़ा तो गए उतबा की तरफ, हमज़ा का कोई मुकाबला कर सकता था? तो हमज़ा थे, हमज़ा सय्यदुश शुहदा, एक वार में उसको कड़का दिया, एक वार। और इसी तरह अली मुतवज्जह हो गए शैबा की तरफ, एक वार कअन्नहु लम यकुन, वो गया कि इधर कोई चीज़ थी ही नहीं। आगे मुकाबला वलीद का उबैदा इब्न हारिस का। असल में ये मुकाबला इनका ना होता, उबैदा का उतबा के साथ होता तो शायद मुनासिब था। उबैदा ज़रा बड़ी उम्र के थे, वलीद यंग था, ठीक है ना। तो मुकाबला इनका हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर वार किए, दोनों ने ज़ख्मी कर दिए एक दूसरे पे और गहरे वार हो गए। तो वो 2 शेर इतनी देर में फारिग हो गए। तो इधर मुतवज्जह हो गए, इसको कड़का दिया, बिल्कुल सफाया कर दिया इसका। तो खैर उबैदा इब्न हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गहरा ज़ख्म लग चुका है। तो उसके बाद बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि वो जो है ना लाए जाते हैं, कहते हैं कि हमने उनको उठाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको रखा, बल्कि उनका चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के में गोया एक तरह से पड़ गया। बस आखिरी लम्हात में थे, आखिरी लम्हात में। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या है? तो आपने फरमाया आपके लिए जन्नत है। उसके बाद फिर शहीद हो गए। तो मुसलमानों की तरफ से 14 बंदे शहीद हुए ना, उनकी तरफ से 70 मुर्दार हो गए और 70 को कैद किया गया। तो ये जो है ना इस वाक़े की तरफ इशारा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यही गुस्सा फिर उसने उतारा, हिंद ने, ये उसकी बेटी थी ना, इसी की बेटी थी, क्या नाम है, उतबा की, हिंद बिन्त उतबा जो अबू सुफियान की बीवी थी ना। तो हमज़ा ने उसका काम तमाम कर दिया। तो फिर वो हबशी को जो है ना लालच थी कि आपको आज़ाद करूँगी। तो हबशी ने फिर अगले साल बदर का वो होता है, फिर हबशी जो है वो तीर हबशी जो नहीं, वो वहशी हबशी नहीं, माज़र वहशी जो है ना वो नहीं, वहशी नहीं, वो हबशी है, मुझे कंफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। तो जो है ना वो हबशी जो है ना वो थे अफ्रीका से, गुलाम थे हबशी। तो उनको जो है ना ये लालच देते कि आपको आज़ाद करूँगी अगर आपने क्या किया, हमज़ा को कत्ल कर दिया। तो वो जंग तो कर नहीं रहा था, इसलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान तो गया नहीं, उन्हें चुपके से तीर मार, तो शहीद हो गए। फिर ये तो जो है ना इसने हिंद ने जो है ना हज़रत हमज़ा का पेट चीरा और उसके बाद कलेजा निकाला, काटा, चबाया नहीं गया उससे, लेकिन वो गुस्सा, ये गुस्सा था जो उसने उतारा। खैर बाद में फिर मुसलमान हो गए। जी, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह कहते कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा एक लश्कर, लोग वहाँ से भागे, इन मुसलमान, हम मदीना मुनव्वरा आए, हम वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में छुप गए। तो हमने कहा कि हम तो हलाक हो गए। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हमने कहा अल्लाह के रसूल हम भागने वाले हैं। फरमाया नहीं कि बल्कि तुम पलट कर हमला करने वाले हो और मैं तुम्हारी जमात हूँ। और अबू दाऊद की रिवायत में ये है कि नहीं, फरमाया बल्कि नहीं, तुम पलट कर हमला करने वाले हो, दोबारा हमला करने वाले हो। फिर हम करीब हो गए, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का बोसा दिया और फरमाया कि मैं मुसलमानों की जमात हूँ। अच्छा, एक ग़ज़वे मोहतम, पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो अमीर थे ज़ैद बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतायन किए, वो भी शहीद हो गए। उसके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब को, उसके बाद वो अमीर, वो भी शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाह वो भी शहीद हो गए।
फिर खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार क्या झंडा उठाया। ये खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला ग़ज़वा था, ग़ज़वा मौत। तो लश्कर बहुत ज़्यादा था उनका। तो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े तरीक़े से मुसलमानों को बाहर निकाला मैदान में, फिर उन पर हमला किया पीछे निकाल के ना। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसको कह रहे हैं कि हम भागे, कि भागे नहीं थे, एक तरीके से उनको दरमियान से निकाला था। समझ आया कि नहीं? तो फरमाते हैं कि आए, हम वहाँ पर छुप गए घरों में, कि हम तो भाग गए, हम तो फरार हो गए। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए डरते हुए। हमने कहा हम तो भागने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अंतुम अक्कारून, और में कर्रारून का लफ्ज़ आता है कि तुम दोबारा हमला करने वाले हो और मैं तुम्हारे जमात हूँ। फ़िया कहते हैं कि जब मुजाहिदीन जिस कैंप या मरकज़ की तरफ आ जाए ना, भाग कर आ जाए मजबूत होने के लिए, क़ुव्वत जमा करने के लिए, तो उसको फ़िया कहा जाता है। तो फरमाया कि मैं तुम्हारी फ़िया हूँ, मैं तुम्हारी क्या हूँ? जमात हूँ। तीसरी फसल सौबान इब्न यज़ीद से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजनीक नस्ब की थी अहले ताइफ का। अहले ताइफ यानी मुहासरा किया ताइफ का। तो 25 दिन तक मुहासरा जारी रहा, वो निकल नहीं रहे थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजनीक जो है ना, मंजनीक वो नस्ब की। मंजनीक तो जानते हो कि नहीं? अच्छा, मंजनीक ये असल में फ़ारसी के लफ्ज़ का मुआरब है। असल में लफ्ज़ है मन चेनेक, मन चेनेक। फ़ारसी में मन कहते हैं ना अपने आप को, चे क्या कितना, नेक नेक को कहते हैं। असल में मन चेनेक में कितना नेक हो, तो उसे से लफ्ज़ बनाया गया मंजनीक। ये लफ्ज़ बना मंजनीक, तो जानते हो ना, मंजनीक जो है ना वो लकड़ी से बनाते थे पहले ज़माने में। फिर उसमें पत्थर डालते थे, रस्सी से उसमें डालते थे, उसको खींच कर फिर वो छोड़ते थे उसको। तो वो जो है ना पत्थर फेंकता था, तो वो दीवार को तेज़ी से वो पत्थर लगता था ना, दीवार में दरारें पैदा होती थी। और बाज़ लोग इस पर आग भी जो है ना इस पर लगाते थे, मसलन तेल वगैरह डाल के ना आग के इसमें गोले बनाते थे, वो फेंकते थे। समझ आन के नहीं? तो ये नस्ब की तो अहले ताइफ का, ये उस वक्त के ज़माने में ये जदीद असलहा था, इसको इस्तेमाल किया। तो हर ज़माने में जदीद से जदीद असलहा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, फिर अगला बाब है बाब हुक्मिल उसारा। उसारा असीर की जमा है, कैदियों को कहते हैं। कैदियों के क्या अहकाम है? जब कोई मैदान जंग में कैदी बनाया जाए, कैदी कुफ्फार की तरफ से भी हो सकता है, मुसलमानों की तरफ से भी कोई कैदी हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों का आपस में तबादला करते हैं। मुसलमान अपनी कैदी छुड़ाने के लिए कुफ्फार के कैदी जो है ना वो रिहा कर देते हैं। बाज़ औक़ात फ़िदिया लिया जाता है, बाज़ औक़ात एहसान करके छोड़ते हैं, और अगर मुनासिब समझे तो क़त्ल भी कर सकते हैं अगर मुनासिब समझे। सूरह मुहम्मद में इसकी तफसील मौजूद, फ़इम्मा मन्नन बअद व इम्मा फ़िदाअ, ये तफसील मौजूद है। हत्ता तदअल हर्ब औज़ारहा। पहली फसल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते फरमाया कि अल्लाह ताला तअज्जुब को खुश होते हैं ऐसी कौम से जो जन्नत में जो लोग दाखिल होंगे जंजीरों में, एक रिवायत में जिनको खींच कर भाग कर लाया जाता है जन्नत की तरफ जंजीरों में, जंजीरों के साथ। सलासिल की जमा, जन्नत में जंजीरों में लाया जाए, क्या मतलब? मतलब ये है कि मुसलमान कुफ्फार के लोगों को कैदी बनाकर उनको हथकड़ी लगा दे, उसके बाद वो आ जाए तो मुसलमान हो जाए, तब इधर जन्नत में दाखिल होंगे ना। समझ आ गई कि नहीं है? अब ये क्या होंगे? मुसलमान जो हो गए जन्नत में दाखिल होंगे। तो ये मतलब है कि उनको जन्नत की तरफ लाया जाता है, इस्लाम की तरफ उनको लाया गया, जन्नत की तरफ लाया गया, किसमें? जंजीरों में। सलमत इब्न अक्वा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जासूस आया। मुशरिकीन का इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, वो सहाबा के पास बैठा बातें करता रहा, फिर उसके बाद वो निकल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको तलाश करो, कत्ल कर दो। तो सलमत इब्न अक़वा कहते हैं कि मैंने उसे कत्ल कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान मुझे दे दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हुआ कि जासूस, समझ आ गया। तो जासूस को कत्ल कर सकते इसलिए कि यहाँ के अखबार लेकर उनको देगा, ख़तरनाक है, देखिए मुनासिब समझे। इसी तरह अगर कोई हरबी है, वो मुसलमानों के इलाके में आया है, हरबी काफिर बगैर वीज़ा के मुसलमानों के हुदूद में घूम फिर रहा है, तो चूँकि उसके साथ मुआहदा नहीं है, उसे भी कत्ल कर सकते। समझ आ गई जी। अच्छा, फनफ़लनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान मुझे दे दिया, यानी उसके पास जो ऊँट था, जो तलवार थी, जो तीर वगैरह जो कुछ था उसके पास, वो मुझे बतौर इनाम दे दिया। समझ आ गई जी। अमीर लश्कर इस तरह कर सकता है, और ये भी कह सकता है, ये भी ऐलान कर सकता है कि जो किसी को कत्ल कर दे तो उसका सामान उसी का है। समझ आ गई। सलमत इब्न अक़वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जिहाद किया हवाज़िन कबीले का। दरिया असना के हम दोपहर का खाना खा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक शख्स सुर्ख ऊँट पर आया, उसने ऊँट को बिठाया और वो देखने लगा। वफ़ीना ज़अफ़, और हम में कमज़ोरी थी, थके हुए थे। वरिक़्क़तुम मिनल्लाह, और सवारी में कमी थी। वबाअदुना मुशात, और बाद हमें से पैदल थे। वबाअदुना मुशात, ये वरिक़्क़तुम मिनल-बहर की तफसीर है। तो वो शख्स निकला तेज़ी से, अब जो ऊँट के पास आया उसको खड़ा किया, और फिर ऊँट उसको लेकर तेज़ी से निकला। तो मैं निकला तेज़ी से, मैंने उसके ऊँट की लगाम को पकड़ा, उसको बिठाया, उस पर अपनी तलवार निकाली, उस शख्स का सर उड़ा दिया। मैं उसका ऊँट लाया, हाँकते उसको, उस पर उसका कजावा था, उस ऊँट पर उसका असलहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोग मेरे सामने आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस शख्स को किसने कत्ल किया? तो उन्होंने कहा इब्नुल अक़वा, यानी मैंने। तो फरमाया कि उसका सामान सारा का सारा उसी का है। उस शख्स का सामान सारा का सारा किसका है? सलमत इब्नुल अक़वा का है। बहुत बहादुर सहाबी थे ये, और इनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। कई लोगों को इन्होंने पूरी जमात को अकेला घेरा, पूरी जमात इनसे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते थे। बहुत बहादुर सहाबी थे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बनु कुरैज़ा उतर आए, यानी तस्लीम किया उन्होंने साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला के हुक्म को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा साद के पास पैगाम। वो आए गधे पर, जब वो करीब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सरदार के लिए खड़े हो जा। फिर वो आए और बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग आपके हुक्म पर उतर चुके हैं, इन्हें कहते हैं कि आपके हुक्म को मानना है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं हुक्म करता हूँ कि इनके जो क़िताल करने वाले लोग हैं, उनको कत्ल किया जाए और उनकी औलाद को कैदी बनाया जाए। और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहकीक आपने इनके बारे में फ़ैसला किया है बादशाह के हुक्म के साथ, और एक बात नहीं कि अल्लाह के हुक्म के साथ। ग़ज़वे अहज़ाब हुआ 5 हिजरी में। बनु कुरैज़ा के साथ पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कल या परसों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा था। क्या मुआहदा था? कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी का साथ नहीं देंगे, और अगर किसी ने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया तो हम मिलकर दिफा करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। समझ आ गई?
ग़ज़वा अहज़ाब में मुशरिकीन जमा हो गए थे, लेकिन असल में पीछे से साजिश जो है वो यहूदियों की थी, ख़ासकर हुयय इब्न अख्तब की थी, जो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का वालिद था, सख्त दुश्मन। इसका पहले मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका। तो जब ये इन्होंने जो है ना वो किया, ग़ज़वा अहज़ाब में मुशरिकीन आए ना, लश्कर पड़ाव डाला, तो उन्होंने शुरू में कोशिश की बनु कुरैज़ा को अपने साथ मिलाने की, उन्होंने इनकार किया। लेकिन फिर हुयय इब्न अख्तब ने बार बार उनके पास गया, उनको मनाने की कोशिश की, तो वो मान गए, उन्होंने गद्दारी की। समझ आ गई ना? तो गद्दारी की, बात शेखनी की। खैर उसके बाद लंबा वाक़या है कि अहज़ाब तो वापस चले गए, मुशरिकीन मक्का के लोग तो गए, तो ये तो यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में रह गए। तो रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो वापस हो गए मुशरिकीन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए घर, और जंगी जो लिबास था वो उतारा, तो फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहुँचे और कहने लगी, यार रसूल अल्लाह, आपने तो जंगी लिबास उतार दिए, लेकिन हमने अभी तक नहीं उतारा। अल्लाह का हुक्म है, आज ही आज बनु कुरैज़ा की खबर लो। तो फ़ौरन हुक्म किया, उधर पहुँचो। बनु कुरैज़ा का मुहासरा किया गया, मुहासरा हुआ, मुहासरा जारी रहा होंगे कुछ दिन। आखिरकार उन्होंने ये कहा कि हमारे बारे में साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला जो फ़ैसला करेंगे वो हमें कबूल है, रसूलुल्लाह का फ़ैसला कबूल नहीं है। साद इब्न मुआज़ का फ़ैसला कबूल है। ये औस के कबीले के सरदार थे, साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला, और औस कबीला उससे पहले, हिजरत से पहले, इस्लाम से पहले हलीफ था बनु कुरैज़ा का। अंसार के दो कबाइल थे ना, दो कबीले थे बड़े, औस और खज़रज। वहाँ पे यहूदियों के भी तो बड़े कबाइल थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा। तो औस जो है ना, औस ये हलीफ था बनु कुरैज़ा का, और खज़रज खलीफ था बनु नज़ीर का। समझ आ रही? तो ये समझ रहे थे कि साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला हमारे बारे में कोई नरम फैसला करेंगे, इसलिए फिर हम वो फैसला मानेंगे, आपका नहीं मानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर उन्हीं दिनों में साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला को एक तीर लगा था, गहरा ज़ख्म आया था। समझ आ गई? गहरा ज़ख्म, मुसलसल खून बह रहा था। तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत साद को ले आए, चले जाएं आप लोग, वो जो फैसला करेंगे ठीक, आपको भी मंजूर है, हमें भी मंजूर है। तो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गधे पर लाया गया, वो सवारी थी उस वक्त, ज़ख्मी की हालत में, ज़ख्मी हालत में थे। और जब करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूमू लिसय्यिदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ, इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो जाओ। उसके बाद वो बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ये लोग ये कहते हैं कि जो आप फैसला करेंगे तो वो हमें कबूल। तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि मेरा फैसला ये है कि जो इनमें से क़िताल करने वाले, जंग करने वाले लोग हैं, उनको कत्ल किया जाए और इनकी औलाद को कैदी बनाया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने बिल्कुल बात यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया, अल्लाह का। और उन्होंने एक रिवायत में ये भी कहा कि ये अल्लाह ने मेरे हुक्म में डाला, मेरे दिल में ये अल्लाह ने हुक्म डाला, ये फैसला। और साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ने ये दुआ की थी, क्या अल्लाह, ए अल्लाह, जब तक मैं बनु कुरैज़ा का इंजाम ना देख लूँ मुझे मौत मत दे। ये फैसला किया, उसके बाद शहीद हो गए। तो 700 उनके बंदे थे, 700 बंदों को कत्ल किया गया। खंदक खुदवाई गई, एक को लाया जाता था और उसकी गर्दन उड़ाई जाती थी। इसी में था हुयय इब्न अख्तब, सफ़िया का वर्ग। वो अगरचे यहाँ से बनु नज़ीर में था, उसको यहाँ से जलावतन किया गया था, वो खैबर में थे वो लोग, लेकिन इधर आया हुआ था। वो जब वो ग़ज़वा अहज़ाब वो मुशरिकीन वापस चले गए ना, तो ये इधर ठहरा हुआ था। तो उसी दिन मुसलमानों ने उसका मुहासरा किया, अकेले का फंस गया, तो उसको भी कत्ल कर दिया गया।
उसका काम भी तमाम है। तो ये वो बात। अच्छा जी, टेंशन लगाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहसवारों की एक जमात भेजी नजद की तरफ। फरमाते कि वो एक शख्स को लाए बनो हनीफा में से, जिसको सुमामा तुम उसाल कहा जाता था, जो अहले यमामा के लोगों के सरदार थे। उनको बांधा मस्जिद नबवी के सतूनों में से एक सतून के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ निकले। उससे कहा तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारा क्या गुमान है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसने कहा मेरे पास ए मोहम्मद खैर है, इनमें तो हम आपके बारे में अच्छा गुमान ही कर रहा हूँ अपने बारे में। फिर उसने कहा अगर आप कत्ल करोगे तो कत्ल करोगे एक खून वाले को, अगर एहसान करोगे तो एहसान करोगे एक कदरदान पर। अगर आपको माल चाहिए तो आप मांगो, दिया जाएगा आपको जो आप चाहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हो गई फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा आपके पास क्या है, क्या ख्याल आपका। ऐसो मामा, वो कहने लगे मेरे पास वो है जो मैंने आपको कल कहा था, अगर एहसान करोगे तो एहसान करोगे कदरदान पर, अगर कत्ल करोगे तो कत्ल करोगे क्योंकि खून वाले को, और अगर माल चाहिए तो मांगो, तुझे दिया जाएगा जो चाहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। जब अगली फिर उस परसों को दिन आया, अगला दिन, तो फिर उससे कहा आपके पास क्या है सुमा। वो कहने लगे मेरे पास वो है जो मैंने आपको कहा था, अगर एहसान करोगे तो एहसान करोगे कदरदान पर, अगर कत्ल करोगे तो कत्ल करोगे खून वाले को, अगर आपको माल चाहिए तो मांगो तो दिया जाएगा जितना चाहो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुमामा को खोल लो। फिर वो गया, एक करीबी जो है ना वो खजूर के दरख्त के पास मस्जिद में गौसल किया, फिर वो मस्जिद में दाखिल हुआ। तो उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। ए मोहम्मद, अल्लाह की कसम, नहीं था कोई चेहरा ज़मीन पर ज़्यादा मबगूस मेरे लिए आपके चेहरे से। अब आपका चेहरा हो गया सबसे पसंदीदा चेहरा तमाम चेहरों में से मेरे नज़दीक। और अल्लाह की कसम, नहीं था कोई दीन ज़्यादा मबगूस नफ़रत वाला मेरे यहाँ आपके दीन से, और अब हो गया आपका दीन सबसे पसंदीदा तमाम दीनों में मेरे यहाँ मेरे लिए। और अल्लाह की कसम, नहीं था कोई शहर ज़्यादा मबगूस नफ़रत वाला मेरे लिए आपके शहर से, और अब हो गया आपका शहर ज़्यादा पसंदीदा तमाम शहरों में मेरे लिए। और फरमाया कि आपके शहसवारों की जमात ने मुझे पकड़ा और मैं उम्रे का इरादा कर रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुशखबरी सुनाई और उसको हुक्म किया कि वो उम्रा करे। जब वो मक्का मुकर्रमा आए तो किसी कहने वाले ने उसे कहा असबाउता, क्या तू साबित बन गया, क्या तू बेदीन हो गया, अपना दीन तूने छोड़ा। फ़क़ाल, उसने कहा नहीं, लेकिन मैं मुसलमान हो गया हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और नहीं, अल्लाह की कसम, नहीं आएगा तुम्हारे पास यमामा से गंदम का एक दाना भी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें इजाज़त दे। इन नजद की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शहसवारों की एक जमात भेजी, और रास्ते में बनु हनीफा के सरदार सुमामा तुम उसाल इनको गिरफ्तार किया, जो अहले यमामा के सरदार थे, ये कबीला वहाँ पर रहता था। खैर इनको लाए, मस्जिद नबवी में एक सतून के साथ इनको बांधा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तुम्हारा क्या ख्याल, मेरे बारे में क्या ख्याल। उन्होंने कहा मेरे पास तो खैर है, यानी आप मेरे पास बारे में अच्छा फैसला करें। और कहा अगर आप कत्ल करेंगे तो कत्ल करेंगे खून वाले को। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो है कि अगर कत्ल करेंगे तो वाकई में मुजरिम हो, तो जुर्म वाले का जुर्म मुजरिम को आप कत्ल करेंगे। दूसरा मतलब इसका है कि अगर आप कत्ल करेंगे तो खून वाले को कत्ल करेंगे, यानी मेरा खून रहेगा नहीं जाएगा, मेरा कबीला आपसे बदला लेगा। अगर आप एहसान करेंगे तो एहसान करेंगे कदरदान पर, यानी मैं आपके एहसान को भूलूंगा नहीं,
मैं उसकी कदरदानी करूँगा। अगर माल चाहिए तो बताओ, जितना माल चाहिए दे दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन सवाल किया, फिर भी यही जवाब दिया। उससे अगले दिन सवाल किया, तब भी यही जवाब दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे छोड़ दो। उसे छोड़ा। वो पास ही करीब खजूर की दरख्त के पास गए नहाने के लिए। उस ज़माने में कोई वॉशरूम वगैरह तो नहीं होते थे ना, तो इस तरह किसी चीज़ का पर्दा करके चादरें वगैरह लगा के नहाते होते थे। गुस्ल किया, मस्जिद में दाखिल हो गए, फिर गवाही दी और मुसलमान हो गए। उसके बाद ये कहा कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा चेहरा, नापसंदीदा मकरूह चेहरा, मकबूल तरीन चेहरा मेरे यहाँ आपका था। अब सबसे पसंदीदा चेहरा मेरे यहाँ आपका है। और सबसे पसंदीदा बल्कि नापसंदीदा दीन मेरे यहाँ आपका था। अब सबसे पसंदीदा दीन मेरे यहाँ आपका है। और इसी तरह सबसे मबगूज़ नफ़रत में आपके शहर से करता था, अब सबसे ज़्यादा मोहब्बत में आपके शहर से करता है। खैर, उसके बाद कहा कि आपके लोगों ने मुझे पकड़ा, मैं उम्रे का इरादा कर रहा था। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्रा करो, जाओ। फिर उम्रे के लिए गए तो किसी ने उनसे कहा असबाउत, तो साबी हो गया। उस ज़माने में जब कोई मुसलमान होता था तो उसको कहते तो साबी हो गया, ये तो अपने दीन छोड़ दिया। तो उसने कहा नहीं, बल्कि मैं मुसलमान हो गया। और फिर फरमाया जो ये तुम्हारे पास या मामा से पहले जो दाने वगैरह अनाज आता था ना, अब एक दाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो कितना मजबूत, एक लम्हा पहले सबसे मबगूज़ तरीन चेहरा, अब एक लम्हा बाद सबसे पसंदीदा चेहरा बन गया। कितना मजबूत ईमान था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदर के कैदियों के बारे में कि अगर मुतइम बिन अदी जिंदा होता और वो मेरे साथ बात करता इन बदबूदारों के बारे में, तो मैं इनको छोड़ देता। मुतइम बिन अदी, ये जो बैर बिन मुतइम उसके बेटे हैं। मुतइम बिन अदी एक सरदार था, मुसलमान नहीं हुआ, हालत कुफ्र पर मरा। ये वो शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान किया। वो एहसान ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए ना, तो वापस जब आए तो दाखिला मक्का मुकर्रमा में इधर मुश्किल था, क्योंकि निकल चुके थे ना मक्का मुकर्रमा से, अब वापस नए सिरे से आ रहे थे। तो दाखिला मुश्किल था कि वो मुमकिन था नहीं छोड़ेंगे। वो अब गए, हम निकलो, नहीं छोड़ेंगे, नुकसान पहुंचाने का ख़तरा था। तो वो रास्ते में मुतइम बिन अदी मिला। बाज़ रिवायतों में आता है कि दो और लोगों पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पेश किया कि मुझे अमान दो ना। जब एक शख्स अमान देता था उस ज़माने में तो फिर बाकी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो मुतइम बिन अदी ने कहा आ जाओ, मैं देता। और इसके 6 बेटे थे, 6 या 8 जवान थे सारे। तमाम बेटों से कहा सारे असलहा उठाओ, सब तलवार उठाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आ जाओ, मैं आपको दाखिल करता हूँ। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आए मक्का मुकर्रमा में। इधर उधर बेटे साथ थे तो नुकसान ना पहुँचा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा आप तवाफ़ करें तसल्ली से। फिर ऐलान किया कि मैंने इनको अमान दी है। तो सारे फिर पीछे हट गए। तो ये एक एहसान था जो इसने किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब बदर के मौके पर 5 साल बाद फरमाया अगर मुतइम बिन अदी जिंदा होता और ये जो 70 तो मारे गए ना, ये जो 70 कैदी हैं इनके बारे में सिफारिश करता कि इनको छोड़ दो, तो मैं छोड़ देता। वो मैं उस एहसान का बदला उससे चुकाता, उस एहसान का बदला उसे दे देता। लेकिन चूंकि उससे पहले, वो बदर से पहले वो फौत हो चुका था। तो अब वो ये बेटे जुबैर नकल कर रहे हैं, लेकिन जुबैर भी इस वक्त जिंदा नहीं थे बदर में, ये तो गिरफ्तार हो गए थे। ये बाद में जब मुसलमान होते तो जाहिर है कि बाद में फिर ये हदीस सुनी होगी, तो अब फिर बाद में जो है वो नकल कर रहे थे। समझ आ गए कि नहीं? वमा अलैना इल्लल बलाग।
जी, ये सवाल किया कि उस्ताद जी सीरत पर मुताला करके जुमा पढ़ाने के लिए कौन सी किताब का मुताला करना चाहिए। देखिए, सीरत पर तो बहुत ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एक इब्न कसीर की है असीरत नबविया, बहुत बेहतरीन है अरबी में, और उर्दू में सीरत मुस्तफ़ा मौलाना मोहम्मद इदरीस खानदेरी रहमतुल्लाह की बहुत अच्छी है, मोतबर है। वो तो सीरत में भी रुवात पर बात शुरू कर देते हैं। और सीरत नबी भी है अल्लामा शिबली नुमानी, अल्लामा सईद सलमान नदवी रहमतुल्लाह की, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और एक और किताब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर फतवे मत लगाना पे, वो है ज़ियाउन नबी। ज़ियाउन नबी के नाम सुना? नहीं सुना? 7 जिल्दों में है, 7 जिल्द। सीरत तो खैर सिर्फ 3 जिल्दें हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली जिल्द तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुख्तलिफ मुल्क थे, मिस्र वगैरह, उनके हालात पर मुश्तमिल है। 5वीं जिल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाल पर मुश्तमिल है। 6ठी और 7वीं जिल्द जो मुस्तशरिकीन के इतराज़ात हैं, उनके जवाबात पर है। ये पीर करम शाह साहब का नाम सुना? हाँ, जो बरेलवी मकतब फ़िक्र से थे, लेकिन मुअतदिल आलिम, बरेलवी ने खुद उन पर कुफर के फतवे लगाए। अच्छे आलिम, बहुत अच्छे आलिम, तो उनकी किताब भी बहुत अच्छी किताब, बाज़ ताबीरात तो बहुत शानदार है। तो वो भी, उसको भी जो है ना वो पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, और जुम्मे के लिए अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मैं इस सीरत पढ़ा रहा था तो ये किताबें पढ़ता था, बाज़ औक़ात जुम्मे के लिए 120 सफ़ों का मुताला भी करता था। तो जुम्मा पढ़ाना है, जो भी करना है, तैयारी तो आपकी अपनी है ना, तो अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। दादी फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम, कल बरोज़ मंगर हमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कौनैन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल वलादत का दिन, तो ये क्या है, सेलिब्रेशन, खुशी मनाने के लिए मदरसे में भी छुट्टी होनी चाहिए।